आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। So they knew about the kingdom of God, and there are a lot of people in the kingdom of God. But like us, all of us, the disciples also wanted to know who will be the greatest. तो जैसे कि सारे लोग जानते थे और इसी तो जो हम भी जानना चाहते, परंतु ऐसे ही यीशु मसीह के चेले भी जानना चाहते थे कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा। So like we also think about people who are the best in football. So who are the best in football? They say either it's Messi or Kaká or whatever else. I don't know many of these names. So they write greatest of all time. They are the GOATs. GOAT, greatest of all time. जैसे कि हम फुटबॉल को देख ले तो हम देखते हैं कि उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, तो कोई बोलेगा कि मेसी है या तो कोई और है, तो उसमें जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है उन्हें गोट कहा जाता है। So the disciples also were interested in all those things. चेले भी इन सारी बातों में दिलचस्पी रखते थे। They were also young in their 27, they are in their 20s and 30s. और वो भी बहुत जवान थे, उनके 20 या 30 साल की उम्र के होंगे वो। But Jesus gave them a very good reply. यीशु मसीह ने उन्हें बहुत ही अच्छा एक उत्तर दिया। And he called a little child and made him stand in the midst. यीशु मसीह ने एक छोटे बालक को बुलाया, उनके मध्य में खड़ा किया। And they were surprised because nobody cared about children. और वो बहुत आश्चर्य हो गए क्योंकि कोई बच्चों के बारे में इतना सोचता नहीं था। They got no spirituality at all. उनको तो आत्मिकता क्या है पता ही They नहीं। don't know the Bible at all. वो बाइबल तो बिल्कुल जानते नहीं। And such people Jesus brought forward. ऐसे लोगों को यीशु मसीह आगे बुलाते हैं। Just 2-3-year-old children and 4-year-old children. और 3 या 4 जो है छोटे छोटे बालकों को बुलाया। And Jesus told them, assuredly I say to you, unless you are converted and become like little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. और कहा यीशु मसीह ने, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। So Jesus' ways, God's ways are so different from our own ways. परमेश्वर के जो मार्ग हैं हमारे मार्गों से बिल्कुल ही अलग हैं। God does not require intelligent people. परमेश्वर जो है बुद्धिमान लोगों को चुनता नहीं। God requires children who are humble. परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहते हैं जो कि नम्र हैं। So we all come into the kingdom of God not because of our knowledge and not because of our family status. हम सभी लोग परमेश्वर के राज्य में आए हैं हमारे बुद्धिमत्ता के कारण नहीं, हमारे परिवार की जो नाम है उसके कारण नहीं। Even if we are born up in a Christian family, you have to get converted to become a Christian. यद्यपि आपका जन्म जो है मसीही परिवार में हुआ है तो भी आपको नया जन्म पाके मन फिराना होगा आपको मसीही बनने के लिए। You have to get born again. हमें नया जन्म पाना And होगा। for that born again, there's a big process. और वो नया जन्म पाने के लिए बड़ी एक प्रतिक्रिया है। Your conversion is a big painful process. मन फिराना जो है बहुत ही दर्दनाक एक प्रक्रिया है। That is to go through the narrow gate and come in through that. It is a very painful process. ताकि वो ये है कि हम छोटे से मार्ग से होकर हम उसमें जाते हैं तो वो दर्द भरा हुआ एक प्रक्रिया है। It is like a child being born into this world. वैसा ही है जैसा एक बच्चे का जन्म दुनिया में होता है। When the baby is in the mother's stomach in the womb, it is very comfortable over there. जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो बहुत ही आराम से रहता है उधर। When it is being born, those 3-4 hours are terrible for the child. और जब उसका जन्म होता है वो 3 या 4 घंटे का समय उसके लिए बहुत ज्यादा दर्द होता है। It's उसमें just squeezed out. उसे वो दबकर निकलता है उसमें And से। all the pain comes out, the child starts screaming. और जो दर्द उसको होता है उसके कारण बच्चा चिल्लाने लग जाता है। And everybody is happy because the child is screaming. और सब लोग खुश हो जाते हैं कि बच्चा ऐसे चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। Why? Because they know this child is being born and is healthy because he's screaming. और क्यों ये आप जानते हैं, क्योंकि ये बच्चा अभी जन्म हो रहा है तो ये बच्चा बहुत ही सेहतमंद है ये सोचकर। And then that is how the pain we go through when we are born again. और यही इस दर्द से हम भी गुजरते हैं जब हमारा नया जन्म होता है। We are converted from a comfortable way of sinful living to a way where God will lead us in future. हम जो है हमारे पाप में जीवन में जो आरामदायक जीवन में हम जो जी रहे थे उनमें से मन फिराकर परमेश्वर के मार्गों में बदलने लगते हैं। And Jesus came to the point in verse 4, he says, therefore, whoever humbles himself as this little child is greatest in the kingdom of heaven. 4 वचन में यीशु कहते हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। So if we humble ourselves, Jesus said, every day, then we will become great in the kingdom of God. अगर हम अपने आप को नम्र करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि हम परमेश्वर के राज्य में बड़े होंगे। It is not whether we become powerful or rich or become preach a lot of sermons or do a lot of big ministry.
ये तब नहीं होगा जबकि हम बहुत ही दौलत वाले हो जाते हैं या तो सामर्थशाली हो जाते हैं या तो फिर बहुत सारे प्रचार करते हैं। So that's why Jesus said the first will be last and the last will be first. इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो पहले आया वो आखिरी हो जाएगा और जो आखिरी आया वो पहले स्थान पर आ जाएगा। People think that the big ministry is the big thing. लोग सोचते हैं कि बड़ा जो सेवकाई है वो बड़ी बात है। And most believers, including most of us, और हम में से अधिकतर विश्वासी यही सोचते हैं। such a big preacher, बहुत बड़ा प्रचारक such है, a big healer, बहुत बड़ा चंगाई दाता है, such a big work he has done. बहुत बड़े बड़े काम उसने किए हैं। God doesn't look at the work and look at the gifts, but he looks at your heart. परमेश्वर उसके कामों को या उसके तोहफों को नहीं देखते हैं, परमेश्वर उसके हृदय को देखते हैं। So that's why God says you have to become like a child and you humble yourself as a little child. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें एक छोटे बालक के समान बनना है, नम्र बनकर एक ही छोटे बच्चे के समान बनना है। Humble ourselves means obedient to God. अपने आप को नम्र करने का अर्थ ये है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। Jesus was the perfect example for you and me. यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए सबसे सिद्ध एक उदाहरण है। He humbled himself. उन्होंने Philippians chapter 2. फिलिपियन 2 में लिखा है कि उसने अपने आप को नम्र किया। How did he humble himself? उसने अपने आप को नम्र कैसे किया? By being obedient. परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर। So humbling means obedience. नम्र करने का अर्थ है कि आज्ञा मानना। Many times we think humbling is to sit quietly over there and make a pious face and to wear simple clothes. हम कई बार सोचते हैं कि नम्र होने का मतलब ये है कि एक जगह पे चुपचाप से बैठ जाना, एक सादा सीधा सा चेहरा बना लेना, ये सब कुछ है। And to talk very softly. और बहुत ही धीरे धीरे बात करना। Many times please and sorry. और हमेशा प्लीज कहना या माफी मांगना। That may be a very small part of it, but then the main thing is that are you obedient to God or not? और वो तो छोटा सा एक भाग हो सकता है, परंतु सबसे मुख्य भाग ये है कि आप आज्ञाकारी हो कि नहीं परमेश्वर के प्रति। Are you obedient to the word of God? आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी हो कि नहीं? When God speaks to you something, are you willing to obey? जब परमेश्वर आपसे किसी चीज को लेकर बात करते हैं तो आप मानने के लिए तैयार हैं क्या? That is why when we become a person becomes born again, he becomes like a little baby. इसीलिए जब भी एक व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है तो एक छोटे बालक के समान हो जाता है वो। All his pride goes away. उसका सारा घमंड दूर हो जाता है। He doesn't think about his status. He doesn't think about anything else. उसके स्थान के बारे में वो नहीं सोचता, बाकी किसी चीज के बारे में नहीं सोचता वो। He accepts that he is a sinner and comes down, even though he is a rich man or a powerful man, he has to come humbly before God. वो अपने आप को पापी मान लेता है, भले वो अमीर हो या सबसे शक्तिशाली हो तो भी वो अपने आप को मानकर परमेश्वर के सम्मुख में नजरें झुकाकर नम्रता से आता है। Until he comes to that point, he cannot enter the God's kingdom at all. जब तक वो उस अवस्था में नहीं आ जाता है तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Till then they remain in their pride. तब तक वो उसके घमंड में ही बना रहेगा। They say, no, I can do it. I will do it. वो कहता रहेगा नहीं मैं करूंगा, मैं करूंगा। I've been told of a story about a man who was quite a rich lawyer in a certain city. और मुझे कहानी बताई गई थी जो कि एक व्यक्ति जो बड़े एक शहर में बड़ा वकील था। But he was a very nice man. परंतु वो बहुत ही अच्छा एक व्यक्ति था। But he would never go to church. परंतु वो कभी कलीसिया में नहीं जाता। He didn't like the people in the church. उसे उस कलीसिया के लोग पसंद नहीं थे। There were a lot of simple people there. There were a lot of simple people, ordinary people. वहां पे सारे बहुत साधारण से लोग थे। And a lot of his friends also told him, please come, at least come for Sunday morning meeting. और उसके एक दोस्त ने भी उसे कहा कि रविवार की सुबह की जो कलीसिया होती है उसमें तो आ जाओ। So, but at least one fine day after much telling him, he agreed to come. और बहुत दिन के बाद उसको बोलते बोलते एक दिन वो आने के लिए तैयार हो जाता है। Now in that church there was a brother who was quite a stout, fat brother, and he used to sometimes say many not very, he had a good meaning, but he would not say some things were not very wise. वहां पे एक जवान भाई थे, वो दिखने में थोड़े मोटे से वगैरह थे, परंतु वो कभी कभी बातें कह देते थे, ऐसे सही बात कहते थे, परंतु उनका बोलने का तरीका जो था वो इतना अच्छा नहीं था। He had a simple heart. परंतु उनके पास एक साधारण सा हृदय था। So one day this lawyer came Sunday morning for the meeting. और एक दिन ये जो वकील है रविवार की सुबह की सभा में आ जाते हैं। And he sat there for the full meeting. और पूरे सभा में वो बैठे रहते हैं वहां। And then after the meeting was over, this man who was a fat man, he went and talked to him. और सभा खत्म होने के बाद ये जो भाई हैं जो मोटे से हैं उनसे बात करने जाते हैं।
After some time, this lawyers are shouting at him. और कुछ समय के बाद देखते हैं कि ये जो वकील व्यक्ति है वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं And he walked out of the church building. और कलीसिया का जो इमारत है उसमें से बाहर निकल के चले जाते हैं। Everybody was very disappointed. और सब लोग को देखकर बहुत ही अच्छा नहीं लगा। He said, "Why this brother had to go and speak to him?" वो सोचने लगे कि ये भाई को क्या जरूरत है उनसे बात करने की। But late in the afternoon, towards the evening, this lawyer phoned up the pastor. और शाम को ये वकील जो है पासबान को फोन लगाते हैं And he told him, "Please come to my house immediately. I'm very disturbed." और वो पासबान को कहते हैं कि जल्दी से मेरे घर में आ जाइए, मैं बहुत ही अशांत हूँ, Come immediately. जल्दी से आ जाइए। He said, "I'm very sorry about that brother had told you. I'm sorry." He said, "Never mind about him. You just come." पासबान ने उनसे कहा कि वो जो भाई ने जो भी आपसे कहा होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तब ये वकील कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ भी उसका नहीं कहना, आप जल्दी से आ जाइए। So the pastor went to his house. पासबान उनके घर में चले जाते He हैं। said, "I'm very disturbed. I'm very disturbed. There's no peace in my heart. I cannot get my afternoon sleep." और ये व्यक्ति कहने लगता है कि मैं बहुत ही बेचैन हूँ, मेरे मन में मुझे जो दोपहर की नींद है वो भी नहीं आई है, इतना शांत हूँ मैं। I think I'm a big sinner. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। I don't know what to do. मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। He would never read the Bible. उसने कभी बाइबल नहीं पढ़ा होगा। You do something and pray for me. कुछ तो कर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। Then this pastor said, "Okay, now we'll pray. We'll kneel down and pray." और फिर पासबान ने कहा चलो अभी घुटने टिकाकर प्रार्थना करते हैं। So he said, "You confess your sins and say that you're a sinner, and you repent and ask God to change your heart." और उन्होंने कहा कि अपने पापों को कबूल कर परमेश्वर के सामने सारी अंगीकार कर लो और परमेश्वर को कहो कि आपके हृदय को वो बदल दे। And receive the Holy Spirit, receive Jesus Christ as Lord in your life. और पवित्र आत्मा को पाए, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता करके मान लें। And he said this prayer. और उन्होंने इस प्रार्थना को कहा। And after the prayer, he said, "Hey, my heart has become very light now." और प्रार्थना के बाद वकील कहते हैं कि मेरा जो हृदय बहुत शांत हो गया, हल्का हो गया है। Thank you, brother, for coming and praying with me. धन्यवाद भाई, आप आए और मेरे लिए प्रार्थना की मेरे साथ। I am so happy and joyful. मैं बहुत ही खुश हूँ। You're so proud. Change so fast by in few hours. और जो पासबान है वो बहुत ही चकित रह गए कि ये जो व्यक्ति जो घमंडी है, किसी की सुनता नहीं है, वो भाई ने ऐसे क्या कह दिया कि अचानक से इसका मन परिवर्तन हो गया, बदल गया ये। Pastor began to wonder. पासबान जो है वो आश्चर्य हो गए। It's maybe the message I gave in the meeting, he said. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो संदेश मैंने जो सभा में दी थी वो उसके कारण होगा। And he asked that lawyer, "Did anything in my message really touch you?" और उन्होंने उस वकील से पूछा, मेरे संदेश में से कुछ भी बात आपके हृदय को छुआ है क्या? He said, "Nothing in your message touched me." उसने कहा कि आपके संदेश में से कुछ भी मुझे नहीं छुआ। Here is that man, no, that fat brother, what he came and spoke to me. उसने कहा कि वो जो मोटे से जो भाई थे वो आकर मुझसे जो बात किए ना वो बात थी। What did he tell you? उन्होंने पूछा कि क्या बात कहा उन्होंने आपसे? "Good morning." उन्होंने कहा I said, गुड मॉर्निंग। "Good morning to you. How are you?" और मैंने भी उनसे कहा गुड मॉर्निंग और कैसे हो आप? Then he told me, "Do you want to go to heaven?" और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप स्वर्ग में जाना चाहते हो? I said, "No." मैंने तो उनको नहीं कहा। Then said, "Then go to hell." फिर वो भाई ने कहा कि तो फिर नरक जाओ। And he said that, I got so angry. जब उन्होंने ये कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। I shouted at him and went out of the church. और मैंने उस पर चिल्ला दिया और कलीसिया के बाहर निकल गया। But on my way in the home, this word was coming, heaven, hell, heaven, hell, all the time. और जब मैं अपने घर में जाने के रास्ते पर ही था तो मेरे दिमाग में ये शब्द जो है स्वर्ग नरक, ये दोनों शब्द मेरे दिमाग में बार बार आने लगे। And then I saw my sin, all my inner sins. और फिर मेरे अंदरूनी जो पाप है वो मुझे दिखने लगे। And then I got so disturbed. That's why I called you. फिर मैं बहुत ही बेचैन हो गया, इसलिए मैंने आपको फोन लगाया। See, when God has to convert a person, he really smashes him on the ground. देखिए, जब परमेश्वर को किसी व्यक्ति को बदलना होता है तो पूरे उसे जमीन पर गिरा देते हैं प्रभु। Paul was sent confidently going to Damascus, trying to arrest all the Christians. और पौल जो है आत्मविश्वास के साथ जो है दमस्कस की ओर जा रहा था, सारे विश्वासियों को वहां पे मारने के लिए। The Lord threw him down from the horse. परमेश्वर ने उसे घोड़े पर से नीचे गिरा दिया And जमीन made him पर blind for 3 days. और उसे 3 दिन तक अंधा बना And दिया broke him.
और उसे तोड़ दिया and spoke to him. और फिर उनसे बात की। It's a humiliating experience. और कितना ही अपमानजनक बात है। So God will send us through humiliating experiences so that we can become like a little child. और परमेश्वर हमें अपमानजनक बातों से गुजरने देते हैं ताकि हम एक छोटे से बालक के समान बन सकें। And after that, we have to continue and be humble ourselves more and more every day. और फिर हमें उसी में लगातार अपने आप को प्रतिदिन जो है नम्र बनाते हुए चलना है। And that is why God sends so many troubles and problems and financial problems in our own life. इसलिए परमेश्वर हमें हमारे जीवन में समस्याओं को भेजते हैं, आर्थिक समस्या, बहुत सारे क्लेशों को भेजते हैं To keep us in weakness. ताकि हमें कमजोरी में रखा जाए। See, we don't like to be weak. देखिए, हमें कमजोर रहना अच्छा We नहीं like to लगता। be independent and proud. हमें जो है स्वयं के निर्भर रहना है और घमंडी रहना See है। what a great work I'm doing. See, such a good believer I am. देखिए, मैं कितना अच्छा विश्वासी हूँ, कितने बड़े बड़े काम मैं कर रहा हूँ। That is there in our flesh, वो हमारे शरीर में है, in everybody's flesh, सारे लोगों के शरीर में, in disciples' flesh. चेलों के शरीर में। That's why Jesus said, unless you get converted and you humble yourself and become like a child, these are the greatest in the kingdom of God. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने आप को नम्र कर कर मन फिराकर एक छोटे बच्चे के समान बनोगे तो यही परमेश्वर के राज्य में बड़े होंगे। See, all the greatest footballers, the greatest cricketers, the greatest the financiers or the rich people, they will not enter the kingdom of God. देखिए, आपसे बड़े बड़े जो फुटबॉल खेलने वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं और जितने बड़े अमीर लोग हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। And most of the great preachers that we see, when you see in their lives are full of scandals. और जब बड़े बड़े प्रचारकों को हम देखते हैं, अगर उनके अंदरूनी जीवन को देखा जाए तो उनका जीवन जो है बहुत बुरा है। Because Jesus knew what was the problem. यीशु मसीह जानते थे कि क्या है समस्या। He points at the problem that is your selfishness and your pride. और यीशु मसीह उस जो समस्या के और बोलते हैं कि तुम्हारा जो समस्या जो है वो घमंडीपन है और स्वार्थीपन है। We think great things about ourselves. हम स्वयं के बारे में बड़ी बड़ी सोच रखते हैं। We think we are humble. हम सोचते हैं कि हम नम्र हैं। Till somebody rubs us and tells us something and we get very angry. अगर कोई हमसे ध्यान से देखकर हमें कुछ बोल देता है तो भी हम गुस्से में आ जाते हैं। This lawyer thought he was a very nice person. ये वकील सोच रहा था कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, He used to help everybody. वो सबकी मदद करता था। Till somebody spoke to him in a very different way. और जब तक कि किसी ने उससे अलग तरीके से बात नहीं की, Then he saw how evil he was. फिर उसने देखा कि वो कितना बुरा है। And what we do when we see all how pride we are and how proud we are and how selfish we are. जब हम ये देखते हैं कि हम कितने ही स्वार्थी हैं, कितने ही घमंडी हैं, तो हमें क्या करें? Say, Lord, I'm a sinner. प्रभु, मैं एक पापी हूँ, हमें कहना है। All of us disciples have to say, Lord, I'm a sinner, please forgive me. और जितने भी उसके शिष्य हैं उनको कहना है कि प्रभु, मैं एक पापी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। In Isaiah chapter 6, Isaiah was before that he was putting condemnation on all the evil people around him. आशिया की 6ठे अध्याय में हम देखते हैं, उससे पहले जो है जितने भी बुरे लोग उसके आसपास के थे, सब लोगों के ऊपर वो दोष लगा रहा था। But when he came into the presence of God, he saw God. He said, "Oh Lord, I'm a terrible person. My mouth is I've got a terrible tongue." और जब वो परमेश्वर के सम्मुख आता है तो वो बोलता है कि प्रभु, मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ, मेरा जो जुबान है सब गंदा है वो। And the Lord said, "I will remove all your sin away." प्रभु उससे कहते हैं कि तुम्हारे सारे पाप मैं तुमसे दूर कर दूंगा। So whenever we see our own lives, God brings us into places where we can confess our sin every day and repent. और जब भी अपने जीवन को हम देखते हैं तो परमेश्वर हमें उस स्थान पे लाते हैं जहां पे हम अपने पापों को कबूल कर वहां पे पश्चाताप कर कर मन फिरा सकते हैं। If we hide our sin, we will never progress in our life. अगर अपने पापों को हम छिपा लेते हैं तो अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। We will not become like little children. हम छोटे बालक के समान नहीं बन पाएंगे। We want to show we have become like hypocrites. हम दिखाना चाहते हैं, हम एक पाखंडी हो गए हैं। That is the problem with all of us Christians. और यही समस्या है सारी मसीही लोगों के बीच में। We don't listen to the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की नहीं सुनते। Whatever I'm thinking is right. मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। I will not take any correction from anybody. मैं किसी सुधारने की कोई सुझाव नहीं लूंगा। Independent nature. स्वयं पर एक प्रकृति हमारी है। As a child becomes older and older, we get this independent nature. जैसे एक बच्चा बड़े होते जाता है तो उसके अंदर ये स्वयं पर निर्भर रहने का जो ये प्रकृति है वो आ जाती है। The child wants to be independent of his parents. वो बच्चा जो है स्वयं के ही इसमें रहना चाहता है, माता पिता को छोड़कर। I want to do this like this. I what I think is right.
मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। In small children have this independent nature, ये छोटे से बच्चे के अंदर भी ये स्वयं पर निर्भर रहने की एक प्रकृति होती है। but when they are stubborn, what do the parents do? और जब वो जिद्दी हो जाते हैं तो माता पिता क्या करते They हैं? give them a good beating. उनको अच्छे मार पीट देते हैं, Then they are okay. फिर वो ठीक हो जाते हैं। Then they don't complain. They cry for some time. They said, "Yeah, my mother and father love me. I will take the beat." थोड़े टाइम वो रोते हैं, वो शिकायत करते हैं, मेरे माता पिता ने मुझे सुधारा है तो मैं अभी आज्ञा मानूंगा, ऐसा सोचते हैं। When they grow up, they don't think how much the father and mother beat them. और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मेरे माता पिता ने मुझे मेरी कितनी मार पिटाई की है। As they grow up, they are very thankful for their parents. और जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं उनके माता पिता के लिए धन्यवादी होते हैं, And they discipline them. और उनको अनुशासन में रखने के लिए। I don't know how much I was so naughty when I was young that I used to get such a lot of beating. मैं जब छोटा तो इतना बदमाशी करता था कि मुझे बहुत मार पिटाई मेरी होती थी। My mother used to beat us a lot. मेरी माँ मुझे बहुत ही मारती थी। My father would not beat because he used to come late in the night. मेरे पिताजी मुझे नहीं मारते थे क्योंकि वो बहुत ही देरी से आते थे रात को। When we were lazy also, she would beat us. अगर हम आलसी होते हैं तो भी मारती थी, And we would accept that correction. और हम वो सुधार को स्वीकार लेते थे। She would get up in the morning 5 o'clock and wake us all up to study. और वो सुबह ही 5 बजे उठ जाती थी और हम सभी को भी उठाती थी पढ़ाई करने के And लिए। give us a cup of coffee to drink and so that we can study. और वो हमें 1 कप कॉफी देती थी ताकि हम पढ़ाई कर पाएं। And then we used to also some studies, then we used to all close our eyes, feel sleepy. हम क्या करते थे, हम पढ़ाई करते करते ही सो जाते थे वहां बैठे बैठे, Suddenly we used to wake up और अचानक से हम उठ जाते थे because the stick would come and give us a hard beating. क्योंकि एक लकड़ी आती थी जो हमें जोर से हम पर पड़ती थी, And that is better than best coffee. और वो कॉफी से भी बेहतर होता That था। sleep would not come again फिर नींद वापस लौट के नहीं आती थी। because of that we studied very well. उसकी वजह से हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की। We were not lazy and we got good marks. हम आलसी नहीं थे और हमें अच्छे मार्क्स मिले। It was not a pleasant experience, but it is very good for us. ये बहुत ही अच्छा अनुभव नहीं था, परंतु ये हमारे लिए सबसे अच्छा था। An obedient child will accept all the correction of God. जो आज्ञाकारी बच्चा है परमेश्वर की से आने वाले सारी सुधारने वाली बातों को स्वीकार लेता है। And as we are trained by it, God trains us more and more. जैसे ही हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर हमें और शिक्षा देते रहते हैं, And with the result that we become more and more humble. और इसका परिणाम ये हो जाता है कि हम और नम्र हो जाते हैं। But we should never become proud and say, now I know everything. और परंतु हमें घमंडी होकर ये नहीं कहना चाहिए कि अभी मुझे सब कुछ आता है। That is the great danger. ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है। Especially when we have a good gift, or we are in a good position, or we are rich, or we are very talented. खास करके जब हमारे पास कोई अच्छे दान होते हैं, हम अच्छे स्थान पर होते हैं, हम अमीर होते हैं, या तो फिर हमारे पास अच्छा कोई काबिलियत होता है। It is very difficult to correct rich people and talented people if they are not humble. अमीर लोगों को और काबिलियत भरे लोगों को सुधारना बहुत ही मुश्किल है अगर वो नम्र नहीं होते हैं तो। And they do all foolish things and everybody laughs at them behind their back. और वो सारे मूर्खता की ही काम करते हैं और सारे लोग उनके पीठ पीछे हंसते हैं। But some people are really quite humble even though they become rich or talented. और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही नम्र हो जाते हैं, बल्कि वो अमीर हो जाए या तो फिर उनके पास काबिलियत ज्यादा आ जाए तो भी। I heard of the example of a very famous surgeon. मैं एक जो फेमस जो सर्जन थे उनका उदाहरण मैंने सुना है। He was a doctor, used to do a lot of operations. वो एक डॉक्टर है, बहुत सारे ऑपरेशन करते थे। He said, I will ask somebody to see my work and give me some correction about it. उन्होंने कहा कि मैं जो काम करता हूँ मैं वो चाहता हूँ कि कोई और देखे और मेरे काम के ऊपर अगर कोई सुधारने की बात मुझे है तो मुझे बता दे वो। I think I'm doing a good job, but let me ask some senior or my colleague to come and watch me. मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जो सीनियर्स हैं मेरे साथ काम करने वाले, मैं ये चाहता कि वो आकर देखे मेरे काम को। So as he was doing the operation, that his colleague and or his senior was observing him. जैसे ही उनके ऑपरेशन के काम को वो कर रहे थे तो उनके सीनियर्स और उनके साथ काम करने वाले से डॉक्टर वो देख रहे थे। And he thought he might find out the most 2 or 3 faults. और उन्होंने सोचा कि 2 या 3 जो गलतियां हैं वो ढूंढ लेंगे मेरे काम से। You know, his colleague and his senior wrote down 2 pages of faults. और उनके जो सीनियर हैं उन्होंने 2 पेज भरकर उनकी कमियां लिखी उस पर। Small things. छोटी-छोटी बातें। So that is how when we come to God, God to observe us, even our elder brothers to observe us, we find that we think we are okay, but they find there are so many wrong things in our own life.
यही होता है जब हम किसी को हमारे ऊपर जांच करने के लिए कहें, हमारे जो एल्डर्स हैं या तो परमेश्वर को कहें, तो हम तो सोचते हैं कि हम सही है। जब वो हमारी जांच करते हैं तो हमें दिखते हैं कि हमारे अंदर कितनी सारी कमियां हैं। Because of that, that surgeon improved. इसी के कारण वो जो सर्जन थे वो और बेहतर बन Yes, गए it is for my good. और उन्होंने कहा कि ये मेरी भलाई के लिए है। The moment we start justifying ourselves, then we go down and down and down. जब हम अपने आप को सही बताने की कोशिश करने लगते हैं तो क्या होता है कि हम नीचे की तरफ चले जाते हैं। That is why Jesus told about the Pharisees. They were preaching very well. They were doing a lot of evangelism. They were conducting so many meetings, fasting, praying, all these things. But Jesus told them, "You are going to go to hell." यही फरीसियों के विषय में हम देखते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, बहुत सारे अच्छी चीजें करते थे परमेश्वर के विषय में, परंतु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम नरक की ओर जा रहे हो। Because they had hidden sins like sexual sins and love of money, love of honor deep down within their heart, which they never gave up. क्योंकि उनके जीवन में पाप के प्रति प्रेम, पैसों के प्रति प्रेम, लैंगिक बातों के प्रति प्रेम और ऐसी बातें थी जो वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते थे। And outwardly they were doing all the good works. It was very easy for them to pray long prayers. और वो बाहरी रूप से अच्छी सेवकाई कर रहे थे, प्रार्थना करना उनके लिए बहुत ही आसान था, लंबी प्रार्थना करते थे। And many times we also can pick up very easy to pray good prayers. और हम भी ऐसे हो जाते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना अच्छे से करना हमारे लिए एक आदत सा बन जाता We है। copy our own leaders. हमारे जो लीडर्स हैं उनकी ही नकल करने लगते And it हैं। becomes like a parrot that we keep on telling the same prayers over and over again, the same phrases. फिर हम एक तोते के समान एक ही बात बार बार कहते रहते हैं। For example, when we pray, many times people pray in Hindi, they say, "Ye choti si pratna, this small prayer I say in Jesus' name." और जब हिंदी में लोग प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से। Why you have to say choti si pratna? आपको छोटी सी प्रार्थना कहने की क्या जरूरत? Every time everybody repeats it because some leader has been said choti si pratna, they also say choti si pratna. और सभी लोग ये छोटी सी प्रार्थना को दोहराते रहते हैं क्योंकि उनके लीडर ने कह दिया छोटी सी प्रार्थना, तो ये भी छोटी सी प्रार्थना करते रहते And हैं it's copied and copied and copied. और उसका नकल बार बार किया जाता है। So when we pray to God, say, "Lord, I'm going to talk to you." और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कहना है कि प्रभु मैं आपसे बात करने वाला I'm हूँ, talking to people face to face. और हम लोगों से आमने सामने बात करते हैं। And most of our prayers are very artificial prayers. परंतु हम में से अधिकतर जो प्रार्थनाएं होती है बनावटी होती हैं। Like many of the Roman Catholics say, the Hail Mary, Holy Mary, the Our Father, many times, 5 times, 7 times. Like a parrot, they keep on talking it out. जैसे कि रोमन कैथलिक लोग जो है प्रार्थना करते हैं होली मेरी या आवर फादर, जैसे कि तोता जो बात कहता है वैसे दोहराते रहते हैं। These prayers are not from the heart. ये जो प्रार्थनाएं हैं वो हृदय से नहीं है, They are prayer from our mind. वो प्रार्थनाएं दिमाग से है। Once I used to, when I was young, I used to keep on praying, saying, "Lord, Lord, Lord, Lord." और जब मैं छोटा था तो मैं भी ऐसे प्रभु 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 करके प्रार्थना करता था। Every sentence, Lord. हर बात में प्रभु। Suppose I tell brother, talking to brother Raju, yeah, I say, "Raju, how are you? Raju, please do this. Raju." Every sentence, Raju say, "Raju," was like, "What's the, how you're talking like this?" जैसे कि मैं भाई राजू से बात करूं और हर बात पे मैं कहूँ राजू ये कहो, राजू ब्रदर ऐसा है, तो हर बात में कैसे मैं उनका नाम ले लेके बोलूं। And my sister had to point it out. She's older sister. She said, "How many lords, lords you're saying in every prayer?" और मेरी बड़ी बहन को मुझे बताना पड़ा कि प्रार्थना के अंदर तुम कितनी बार प्रभु प्रभु कहते हो। You say from your heart. अपने हृदय से बोलो। So when we mean, we have to from our heart. जब हम बोलते हैं वो बात हमारे हृदय से होनी चाहिए। That's why Jesus said, when you pray in public, pray very short prayers. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जब आप लोगों के बीच में प्रार्थना करते हो तो छोटी प्रार्थना करो And that's say from your heart. और अपने हृदय से बोलो। All these long prayers, sweet and flowery good words and that we use is useless. जितने भी लंबी लंबी प्रार्थनाएं जो अच्छे अच्छे शब्द लगाकर हम बोलते हैं वो कोई काम की नहीं। A.W. Tozer said, the best prayers are prayers without any words. और A.W. टोजर ने कहा है कि सबसे अच्छी प्रार्थना वो प्रार्थना है जिसमें कोई शब्द नहीं होता। How can a prayer be without words? एक प्रार्थना ऐसे कैसे हो सकती है बिना शब्दों That is की? the desire and groaning of your heart God hears. वो हमारे हृदय की एक पुकार है जो प्रभु सुनता है। So that is how we must stay away from all hypocrisy. ऐसे ही हमें सारी जो पाखंडीपन है उससे दूर रहना है। Little children are not hypocrites. जो छोटे बच्चे होते हैं वो पाखंडी नहीं होते। When they speak to you, you can look in their eyes and speak. जब वो आपसे बात करते हैं आप उनके आंख में देखकर उनसे बात कर सकते हैं। When you have little children around us, always look at their faces. जब छोटे बच्चे होंगे तो उनको आप उनके चेहरों को देखिए। The eyes are very clear.
उनकी आंखें बहुत ही साफ होती हैं। As a person grows older, the eyes become very crooked and because of pride and selfishness. जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी आंखें जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उनके मन की जो इच्छाएं हैं, जो पाप है, उसकी वजह से। There are a lot of selfish motives are there in their heart. उनके हृदय के अंदर स्वार्थी इच्छा अभिलाषाएं होती है। All pride that we can see through people's eyes. उनकी जितनी भी घमंड की बातें हैं उनकी आंखों से हमें दिख जाती हैं। There are people who are demon possessed. Something in their eyes is wrong. और कुछ लोग जो दुष्ट आत्मा से भरे होते हैं उनकी आंखों में कुछ तो गड़बड़ होता है। Especially those who are doing a lot of idol worship and all. Something is wrong with their eyes. और जो लोग खास करके मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं उनकी आंखों में कुछ तो गलत होता है। People who are crooked and something can say, I don't know, he's saying nice things, but somehow when I look at his eyes, I don't feel he's straight. और कुछ लोग जो टेढ़े होते हैं तो वो दिखने में तो ठीक दिखते हैं, परंतु उसकी आंखों में देखो तो पता चलता है कि उसकी आंखों में कुछ तो सही नहीं है। We heard about Sadhu Sundar Singh. हमने साधु सुंदर सिंह के बारे में सुना है। He was one of the greatest Christians and the humblest Christians that ever lived in India. इंडिया में जीने वाले सबसे नम्र एक मसीही थे वो। He had such a love and devotion for the Lord. परमेश्वर के लिए उनका जो भक्ति बहुत बड़ा था। He went to many places around the world also. और पूरी दुनिया में कई जगह पर वो जा चुके हैं। The best thing is that people says when he looked at his eyes, they looked as if he had the eyes of a child. और अच्छी बात यह है कि जब लोगों ने उनको देखा, उनकी आंखों को देखा, तो वो कहते थे कि जैसे छोटे बच्चे की आंख को देखते हैं वैसे उनका आंख दिखता If you है। have not seen eyes of a child, go and look at some of the eyes of the child. अगर आपने कोई बच्चे की आंख को नहीं दिखाया तो आप देख लीजिए बच्चे की आंख को। There are some small children over here, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं कुछ, and you look at them. उनको देखिए आप Say, Lord, make me also like that. और आप कहिए कि प्रभु मुझे भी ऐसे ही बनाइए, Make me simple and humble in heart. मुझे अपने हृदय में जो है नम्र और साधारण बनाइए। Jesus said, the kingdom of God belongs to them. और यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य उनका है। All these small children, if they die today, they'll go straight to heaven. और जितने भी छोटे बच्चे अगर उनकी मौत आज हो जाती है तो भी वो सीधा स्वर्ग में जाएंगे। Jesus said that their angels are watching me watching God every day. और यीशु ने कहा कि उनकी जो स्वर्गदूत है परमेश्वर के मुंह को प्रतिदिन देखते रहते हैं, Because they're innocent at heart. क्योंकि उनके मन में मासूम होते हैं वो। But many times their parents are not like that. परंतु उनके जो माता पिता वैसे नहीं होते, The parents are very cunning. उनके माता पिता चतुर होते They're हैं, not proud. वो घमंडी होते हैं। And they copied all the things of this world we absorb. और ये दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उसकी नकल उन्होंने की है। As the child grows up, they absorb all the values of this world. और जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है दुनिया की जितने भी गुण है वो अपने अंदर ले लेता है। The saint, that simplicity goes away. वो जो साधारण है वो चला जाता है। That's why Jesus tells us to change. इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं हमें बदलने We के have to लिए, get born again. हमें नया जन्म पाना And we है, have to change every day. हमें प्रतिदिन बदलना है। And we get transformed when we daily humble ourselves, take up our cross. जब अपने क्रूस को उठाते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, तो प्रतिदिन हमारा परिवर्तन होता है। And how do children become so spoiled and they become selfish? बच्चे जो है स्वार्थी और बुरे कैसे हो जाते हैं? They get the values of this world. ये दुनिया के गुण उन्हें मिल जाती है। I know when I was about 4 years old, जब मैं 4 साल का था, 4 or 5, 4 या 5, and I was telling my younger brother, मैं अपने छोटे भाई से कह रहा था, do you know who's the best person in this whole world? आपको पता है क्या इस पूरी दुनिया में सबसे बेहतर इंसान कौन है? In Malayalam, I was to talk. मैं मलयालम में बात करता था। Ellarekaatti nalla aaradna ariyam. इस दुनिया में सबसे अच्छा कौन है तुझे पता है? Without waiting for his answer, I said, it is me. उसके उत्तर की इंतजार किए बिना मैंने कहा कि मैं ही हूँ वो। And my younger brother said, yes, yes. और मेरे छोटे भाई ने भी कहा हाँ हाँ। And my mother was hearing all this. और मेरी माँ जो है ये सब कुछ सुन रही थी। See how this fellow is talking? देखो ये बच्चा कैसे बात कर रहा है। And why I was talking like that? Because I stood first in class. मैं ऐसा क्यों बोल रहा था? क्योंकि मैं क्लास में पहला आया था। So I thought something great about myself. और मैं अपने बारे में बड़ा सोचने लग And गया। when you encourage all these things in our mind, we become prouder and prouder and prouder. अगर ये सारी बातें हम जो और प्रोत्साहित करते जाएंगे अपने मन में, तो हम और भी घमंडी होते जाएंगे। And the more proud we become, we think we are somebody very great. और जितना ही घमंडी हम होते जाते हैं उतना ही हम सोचने लगते हैं कि हम तो बड़े हैं। Some of the proudest people in India are the Syrian Christians. और सबसे घमंडी लोग जो इंडिया में है वो है मसीही। I don't know how many are there over here, but I hope they don't get offended. और वो मसीह कितने हैं मुझे नहीं जानते, मैं चाहता कि उनको भी बुरा न लग जाए। They say we are not Christians of yesterday and today of 10 or 20 or 100 years.
We are Christians from 2000 years. वो कहते हैं हम तो 100 साल से 200 साल से मसीही नहीं है, हम 2000 साल पहले से ही मसीही हैं। And they think no end of themselves. और वो उनके सॉरी They think no end of themselves. वो उनके बारे में कुछ और अंत तक नहीं सोचते, And very difficult to correct them. और उनको सुधारना तो बहुत मुश्किल है। They look down on everybody else. वो किसी को भी नीचे की ओर देखते हैं। Unless they really get converted and humble themselves, they never enter the kingdom of God. जब तक उनका मन फिराव नहीं होता है तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर That's why पाएंगे। they're always quarreling and fighting and very difficult to reach to. इसलिए हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। Another category of the people of this world, the people who are so proud, are the doctors. और दूसरे जो भाग के लोग हैं जो बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं इस दुनिया में, वो है डॉक्टर लोग। They say that there are two people you must never upset or get offend. वो कहते हैं कि दो ऐसे लोग हैं जिन्हें आपको नाराज नहीं करना चाहिए। One is that you must not offend God, एक तो आपको परमेश्वर को नाराज नहीं करना, and second, you must not offend your doctor. या दूसरा तो आपको आपके डॉक्टर को नाराज नहीं करना। If you offend God, He will send you to the doctor. अगर आप परमेश्वर को नाराज करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास भेजेगा। But if you offend your doctor, He'll send you to God. अगर वो आपने डॉक्टर को भी नाराज कर दिया, वो आपको परमेश्वर के पास See पहुंचा how देगा। powerful the doctors are. देखिए कितने ही शक्तिशाली होते हैं डॉक्टर्स। So whenever people go to the doctors, they say namaste, and they bow down so much and really have the fear of the doctor. और जब भी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सर झुका के नमस्ते कहते हैं, इतना डर होता है लोगों के मन में उनके My प्रति। life is in your hand. मेरा जान जो है आपके हाथों में है। And they have more respect for doctors than God Himself. और परमेश्वर को जितना आदर देते हैं उससे भी बढ़कर इस डॉक्टर को आदर देते And the हैं। doctors know this and they become so arrogant and proud. और डॉक्टर लोग को ये बात पता होती है, इसके कारण बहुत ज्यादा अहंकारी और घमंडी हो जाते हैं। वो Their high egos on the highest level. उनका जो अहंकार है सबसे ऊंचे स्थान पर होता है। And that's why it is very difficult for them to mix around with common people. इसीलिए उनका जो साधारण से लोग हैं उनके साथ मिलजुल कर रहना मुश्किल हो जाता है। We had some distant relative who was a doctor. मेरा एक दूर का रिश्तेदार है जो डॉक्टर है, She has just passed out अभी ही वो पास आउट हुए हैं। and she was a lady doctor. वो एक महिला डॉक्टर हैं। And somebody asked her, you finished, you're going to get married, have you learned, do you know how to cook? और वो किसी ने उनसे पूछा कि तुमने अपना पढ़ाई खत्म की है, अभी आपकी शादी होने वाली है, तो आपको खाना पकाना आता है क्या? She says, what is there to learn in that? उसने कहा है कि इसमें सीखने की क्या बात That है? is the job of duffers. वो तो जो मंद लोग रहते हैं उनका काम है। They say, mandamar ne jo liya. मंद लोग रहते हैं उनका काम है ये। That is the arrogance that people have. इतना घमंड होता है लोगों के अंदर। We are so clever, see, we are so intelligent. देखिए हम तो बहुत ही बुद्धिमान है, ज्ञानी हैं। And that is how a child also becomes very arrogant and proud when he becomes successful. ऐसे ही एक बच्चा भी जो है घमंडी अहंकारी हो जाता है जब वो जो है सफल हो जाता है। All of us, believers also, disciples of God, whenever God blesses us, the greatest danger is becoming proud. यही हम सारे विश्वासियों के साथ भी होता है कि जब भी परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष करते हैं तो सबसे खतरे की बात ये हो जाती है कि हम घमंडी हो जाते हैं। So I can preach so well. मैं अच्छे से प्रचार कर So सकता many हूँ, people have come to the Lord through me. मेरे से बहुत सारे लोग प्रभु में आए हैं, I can play the guitar well. I can sing very well. मैं अच्छे से गाना गा सकता हूँ, गिटार अच्छे से बजा सकता हूँ। But God has given us all these talents. We will soon forget that. परमेश्वर ने हमें ये सारी काबिलियत दी है, ये हम जल्दी से भूल जाते That is हैं। why we must humble ourselves every day. इसीलिए हमें अपने आप को प्रतिदिन नम्र करना है। What is the greatest problem in our life is pride. हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो घमंड है। Pride is the mother of all sins. और घमंड जो है सारे पापों की माँ है। That is why we fight and quarrel and feel jealous and don't get fellowship with people. इसलिए हम झगड़ते हैं, लड़ते हैं, जलन रखते हैं, लोगों के साथ संगति नहीं कर पाते। When I was in the going to the Methodist church in Baroda, when I was posted, जब मैं बड़ौदा में मेरी पोस्टिंग हुई थी, वहां पे एक मेथोडिस्ट कलीसिया में मैं जाता था। there were so many people in Methodist church who were in charges. There were pastors, there were choir leaders, and there were other leaders of EU and EMFI and so many other things, and all the different organizations. और वहां पे बहुत सारे लोगों के पद में स्थान में रहते थे, जैसे कोर लीडर्स हो गए, अलग अलग जो लीडर्स हो गए, एल्डर्स हो गए, अलग अलग स्थान पद के लोग हुआ करते थे। They hardly used to speak to each other among themselves in the church also. और वो जो है बहुत ही मुश्किल से एक दूसरे से बात करते थे, कलीसिया के अंदर भी बात नहीं ज्यादा करते थे। They had big egos. उनके अंदर बड़ी अहंकार थी।
But after the church meeting, they had small children. They were very happy with each other. परंतु सभा खत्म होने के बाद उनके छोटे छोटे बच्चे जो होते थे वो एक दूसरे के साथ खुशी से खेलते थे। They used to play with each other, but the parents would not get along with each other. वो खुशी से एक दूसरे के साथ खेलते थे, माता पिता जो है एक दूसरे के साथ संगति नहीं कर पाते। Because the elders could not get along with because of their pride and their selfishness. और जो बड़े लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मेलजोल कर नहीं रह पाते थे क्योंकि उनकी स्वार्थीपन की वजह से, घमंड के कारण। Unless we humble ourselves, take up our cross, we'll also become like that. अगर हम अपने आप को नम्र नहीं करते हैं, अपने क्रूस को रोज नहीं उठाते हैं, तो भी हम भी वैसे ही हो जाएंगे। So many pastors all over Bombay, they are so proud. अधिकतर जो पासबान जो बॉम्बे में वगैरह हैं बहुत घमंडी हैं वो। They don't want to take up their cross. वो अपने क्रूस को नहीं उठाना चाहते। They get angry very quickly. वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं When they don't get a proper position. जब उनको सही स्थान नहीं मिलता। And many of us try to copy them. और हम में से कई लोग उनकी नकल करने की I कोशिश want to करते be हैं। in ministry. I want to do this. I want to do that. मैं बड़ी सेवकाई चाहता हूँ, ये वो करना चाहता हूँ। Jesus said, यीशु ने कहा you should be a servant. तुम एक सेवक बनना है। That is there in each one of us. वो हम में से हर किसी में है। It was there in the lives of John and James and their mother. और ये जो जीवन है, यूहन्ना, याकूब और माँ उनकी जीवन में थी। They came to Jesus. वो यीशु के पास आए। As you can imagine, namaskar, namaskar. वो नमस्कार करके आए। Something. What do you want? Jesus said. यीशु ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें? Well, James will take over. I want to put this side, and John will take over. There's one side. उनकी माँ ने कहा याकूब को मैं एक आपके इस तरफ और यूहन्ना को इस तरफ देखना चाहती हूँ। After all hearing all these messages, they still wanted to become great. इतने सारे संदेश सुनने के बावजूद भी वो बड़ा बनना चाहते थे। Jesus said, I cannot keep anybody a right side and left side. You have to suffer a lot for that. यीशु ने कहा मैं किसी को दाएं या बायां जो भाग है वो नहीं दे सकता, इसके लिए तुम्हें बहुत क्लेश से होकर गुजरना होगा। Are you willing to suffer? क्या तुम दुख उठाने के लिए तैयार हो? Yes, we are willing to suffer. उसने कहा हाँ दुख उठाने के लिए तैयार है हम। But we want kursi on the right and kursi on the left. परंतु हमें एक कुर्सी इस तरफ चाहिए और उस तरफ चाहिए पाए। But Jesus said that my heavenly Father sees everybody's hearts, those who are humble and who suffer most, he will be given them. यीशु मसीह ने कहा कि मेरा स्वर्गीय पिता सारे लोगों के हृदय को देखता है, जो कि नम्र है, जो क्लेश उठाकर आता है, तो उनको प्रभु वो देगा। The remaining 12 disciples got very angry with these John and James. अब बाकी जो चेले थे वो याकूब और यूहन्ना को देखकर बहुत गुस्से हो गए। How they are लगाएंगे मस्का polish. वो कितना मस्का लगा रहे थे वहां। See, all this is there in human flesh. ये सारा सब कुछ एक मनुष्य के शरीर में होता है। And if we don't humble ourselves, we'll be proud and we'll go away from God. अगर हम अपने आप को नम्र नहीं करेंगे तो हम घमंडी हो जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे। What does it mean great in the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य में बड़ा होने का मतलब क्या है? Those who are close to God. जो प्रभु के करीब होते हैं, Those who walk with God. जो प्रभु के साथ चलते हैं। A child is always very close to his mother and father. एक बच्चा जो है अपने माता पिता के बहुत नजदीक होता है। Even if we give them many toys and take away, say, come away from your mother and father and I'll give you some toys and chocolates and all these things. अगर उसके जो खिलौने हैं उससे दूर किया जाए और बोला जाए कि माता पिता को छोड़कर मैं तुम्हें अच्छे खिलौना दूंगा, खेलने के लिए चॉकलेट्स दूंगा, The child will say, I don't want these, I want my mommy. वो बच्चा कहेगा कि मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। There was a song in English, I want my mommy, I want my mommy. There was a song like that. एक अंग्रेजी में गाना है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, माँ चाहिए। The child was lost. वो बच्चा जो एक खो गया था। He doesn't want sweets, he doesn't want toys, nothing. He just wants mommy. उसको कोई मिठाई नहीं चाहिए, कोई भी खिलौना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ उसकी माँ चाहिए। That should be our attitude. I want Jesus. I want to be with God. Forget about all the other positions, my job, my child, my children. I want to be close to the Lord. ये हमारी भी रवैया होना चाहिए कि मुझे मेरा प्रभु चाहिए, मेरी नौकरी जाने दो, मेरे परिवार जाने दो, कुछ भी जाने दो, मुझे प्रभु से नजदीक होना है, सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रभु चाहिए। We want God wants us to make us people who are after God's heart and will listen very carefully to the Lord and obey Him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे मनुष्य बने जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार हैं और परमेश्वर को ध्यान पूर्वक हर बात में सुनते हो। We heard what about Psalm 131 we read. हमने 131 भजन संगीता पढ़ा। Says, my heart is not haughty, my heart is not proud. मेरा हृदय जो है घमंडी नहीं है, मेरा हृदय जो है बूझा नहीं किया है मैंने। I'm like a child who's on my mother's breast. मैं ऐसा बच्चा हूँ जो मेरे माँ की छाती में छाती पे हूँ। Who wrote the psalm? ये भजन संगीता किसने लिखी है? Psalm of David.
दाऊद की भजन संगीता No है। wonder he is called man after God's own heart. कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसको परमेश्वर के हृदय के अनुसार रहने वाला मनुष्य कहा He गया did a है। lot of wrong things, उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं, but he had a heart for God. पर उसके अंदर एक हृदय था परमेश्वर See, के। God doesn't look at our faults. परमेश्वर हमारी कमियों को नहीं देखते। Children will make a lot of sins we will do. हम बच्चे बहुत सारे पाप करेंगे हम। How God loves a person who is repentant, who is contrite, is willing to acknowledge his sin. परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो कि नम्र है, टूटा हुआ है, जो अपने पापों को कबूलने के लिए तैयार है। That is why God loved Peter so much in spite of all the foolish things that he said. इसीलिए परमेश्वर ने पतरस से इतना प्रेम किया, भले ही उसने बेवकूफी की बातें कह दी थी, पाप किया तो भी। When we see God's people, God's heroes, they all of them have made so many wrong things. जब परमेश्वर के लोग जो नायकों को देखते हैं तो हम उनके जीवन को देखते हैं कि बहुत सारे गलत काम उन्होंने जीवन में किया है। Jacob was such a crooked person. या जो याकूब था बहुत ही टेढ़ा था वो, And he appeared very bad. और सॉरी He appeared very bad, वो दिखने में भी बुरा था, but he had a heart for God. परंतु उसके अंदर हृदय परमेश्वर के लिए था। He was willing to confess his sin. उसके पापों को कबूलने के लिए वो तैयार था। Not only that, he was willing to change. उतना ही नहीं, वो बदलने के लिए भी तैयार था। Why do we send children to school? Because they're willing to change. और हम जो है बच्चों को स्कूल में क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उन्हें बदलने के लिए। When they are stubborn, teachers will beat them, scold them. और जब वो जिद्दी हो जाते हैं, जो टीचर्स होती हैं उन्हें मारेंगे, सुधारेंगे। Children are not perfect, और बच्चे जो है सिद्ध हो जाएंगे, but they're willing to change. परंतु वो जो है बदलना चाहते The हैं। Holy Spirit also wants to change us. परमेश्वर भी हमें, पवित्र आत्मा भी बदलना चाहता है हमें। Very few believers want themselves to be changed. बहुत ही कम विश्वासी ऐसे होते हैं जो अपने आप को बदलना चाहते That हैं। is why we are not so close to the Lord. इसीलिए हम परमेश्वर से इतने करीब नहीं हैं। Anybody can be close to the Lord. कोई भी परमेश्वर के नजदीक हो सकता है। During Jesus' time, who was the closest to Jesus? यीशु मसीह के समय पर यीशु मसीह से नजदीक कौन ज्यादा था? It is not John who leaned on Jesus' breast. वो यूहन्ना नहीं जो यीशु मसीह के लग के बैठा करता It is था। a sinner woman called Mary Magdalene. वो एक पापी स्त्री थी जिसका नाम मरियम मगदलीन Nobody थी। would have thought that Jesus would show himself to her. किसी ने सोचा भी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह उसको पहले दिखेंगे। She loved Jesus more than anybody else among all their disciples. उसने प्रभु यीशु मसीह से सारे चेलों से बढ़कर प्रेम रखा था। God tells us beforehand, if you love me, I will disclose myself to you. प्रभु पहले से हमें कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मैं तुम्हें पहले दिखाऊंगा, प्रदर्शन दूंगा। One day when Jesus comes, he will take the people up who love him most. और जब एक दिन प्रभु आएंगे तो प्रभु उन लोग जो उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। It may be widows, it may be sisters, it may be ordinary people, poor people who are not recognized at all. और वो हो सकते हैं विधवा होंगे, बहनें होंगी, और जो गरीब जन, साधारण जन होंगे जिनको लोग जानते भी नहीं होंगे। So whenever God speaks to us, what shall we do? जब भी प्रभु हमसे बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? Obey, आज्ञा मानना, change, बदलना। confess your sins. Lord, I will change my habits. मेरे अपने पापों को कबूल कर कर कहना कि प्रभु मेरी आदतों को मैं बदल दूंगा। Make ourselves small. अपने आप को छोटा करना। Many times we say, Lord, why didn't you speak to me? कई बार हम कहते हैं कि प्रभु आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? Why didn't you point out my fault? मेरे कमियों को क्यों नहीं दिखाते आप? Then the Holy Spirit will say, फिर पवित्र आत्मा कहेगा, you are not willing to listen. तुम सुनने के लिए ही तैयार नहीं हो, That's why I did not speak to you. इसलिए मैंने तुमसे बात ही नहीं की। You are not willing to change. तुम बदलने के लिए भी तैयार नहीं That's हो, why you remain like that and you keep on sinning and keeping on getting angry, keeping on getting anxious. इसलिए तुम ऐसे ही हो, पाप करते रहते हो, चिंता करते रहते हो। I thank God that whenever God spoke to me, many times were difficult, I said, yes, Lord, I surrender my life. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जब भी परमेश्वर ने मुझसे बात की, कई बार मुश्किल थी, फिर भी मैंने परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उन बातों को बदल दी। So when problems used to come earlier, I used to get very troubled by it. जब कोई भी समस्या आ जाती थी तो पहले के समय में ऐसा होता था कि मैं बहुत क्लेश में आ जाता था But उसको। after some time, when I listened to God, more and more peace began to come. कुछ समय के बाद जब प्रभु की सुनने लगा तो मेरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा शांति आने लगी। My God will handle it. मेरा प्रभु उसका ध्यान रखेगा। Children have no tension and no worries. बच्चों के अंदर कोई भी टेंशन या कोई चिंता नहीं होती, Because all their problems, all their things are taken up care by their Heavenly Father. क्योंकि उनकी जितनी भी समस्या है सब कुछ उनके स्वर्गीय पिता ने ध्यान रख लिया है। No, their earthly father and earthly mother will take care of them. उनके जो यहाँ के जो माता पिता है पृथ्वी पर के, वो उनका ध्यान रखेंगे। There may be problems, there may be child, the father may be out of job, but the child has no tension at all.
हो सकता है पिताजी के बाद पास काम भी नहीं है तो भी बच्चे को कोई टेंशन नहीं होता। It is the father's desire. They know my father and mother will take care of me. वो सोचता है कि मेरे जो माता पिता हैं वो मेरा ध्यान रखेंगे, ये उसके मन में है। God's word always tells us he is our heavenly father. He will take care of you. परमेश्वर का वचन हमेशा हमसे कहता है कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारा ख्याल रखेगा। He will, you just commit your life to him. Don't make your own plans. And if you have plans, commit it to him. Say, Lord, let your will be done. और अपने जीवन में कोई भी योजना नहीं बनाए, अपने सारे मार्गों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके कह दे कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए। God's plans are for our very best. परमेश्वर की जितनी भी योजनाएं हमारे सब कुशलता के लिए हैं। And that is a simple secret God tells us. Just rest in his ways and say, Lord, today you lead me and I will walk with you. और ये छोटी सी एक जो रहस्य है जो परमेश्वर हमसे कहते हैं और हमें कहना है कि हाँ प्रभु आज मुझे आप मेरी अगुवाई कीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। And God hides these things from the wise and the intelligent, but shows them to babies. और परमेश्वर की जितने भी मार्ग है परमेश्वर बुद्धिमान और ज्ञानी से छुपा कर परमेश्वर उसे छोटे बालकों को दिखाते हैं। And how do you know that you're walking with God and you're close to God? हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर से करीब होकर चल रहे हैं? In English, there's a phrase, the proof of the pudding is in the eating. और जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है कि जो केक बनता है उसका जो टेस्ट है, सॉरी ब्रदर, The proof, I mean, how do you know the pudding is good, that the food is good when somebody eats it? कैसे पता चलेगा कि जो मीठा खाया जा रहा है वो अच्छा है? जब आप खाएंगे तब आपको पता So चलेगा। when we go to troubles and trials, we'll have peace जब हम भी कोई भी समस्या होकर गुजरेंगे हमें अंदर शांति होगी, and we'll have joy in our heart. हमारे हृदय में आनंद होगा। And somebody hates us, we love towards them. अगर कोई हमसे नफरत करता है तो हम उनसे प्रेम रखेंगे। So through the problems is a little test for all of us. आज ये समस्या से होकर गुजरना हमारे लिए एक जांच है। How close I've come to the Lord. हम प्रभु से कितने करीब हैं। And the Lord gives me the grace of God. He does this work in my life. और परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे देता है और परमेश्वर का काम मेरे जीवन में वो करता है। Those who want to become like a little child and surrender their life to the Lord. और जो छोटे बालकों के समान बनना चाहता है अपने जीवन को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर The दे। ways of God are very good. परमेश्वर के जो मार्ग है बहुत अच्छे हैं। The Apostle John said, his ways are not a burden. और प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि उनके मार्ग जो है वो बोझ नहीं है। The commandments are not a burden. परमेश्वर की आज्ञाएं जो है बोझ नहीं है। When God tells you something to do, do it. अगर परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहते हैं तो कर दीजिए। Doesn't matter. Don't listen to your mother or listen to your father or your friends. Just do what God says. आपके माता पिता आपके दोस्तों की बिल्कुल मत सुनिए, परमेश्वर जो कहते हैं वही करिए। And these are the people who will find the presence of God always with them. ये वो लोग हैं जो पाएंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ हर समय होता है। God will change us परमेश्वर हमें बदलेंगे from glory to glory महिमा से महिमा की ओर by the power of the Lord, by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। Amen. Can you hear, brother? At the